शुभोदय बच्चों, ऑनलाइन क्लास के लिए आपको ये 7वीं कक्षा के लिए आपका हिंदी दिवस पाठ हम शुरू करेंगे। 7वीं कक्षा में हिंदी दिवस हमारा पाठ का नाम है। तो बच्चों, हम अनेक तरह से डेज बनाते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेज? यू नो वेरी वेल। टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, yes, water day, environmental day, so many days are there, no? Save earth day, इस तरह फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, इतने सारे हम डेज सेलिब्रेट करते हैं। सो हर एक डेज का कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक डे का इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम देखते हैं मदर्स डे, तो हमारे इम्पॉर्टेंट क्या है? मदर के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होना, मदर का महत्व देना, हमें महत्व देना है। तो उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है वो बताना है। वो भी ऐसे ही फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, ऐसे हम बना रहे हैं। तो आजकल सब ये जोरदार चल रहा है। तो हम देखेंगे हमारे लिए हिंदी पाठ में हिंदी दिवस क्यों महत्व है ना? हमारे लिए हिंदी क्लास क्यों महत्व है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बनाते हैं हिंदी दिवस, तो इस पाठ में हम सीखेंगे। तो हमारा पाठ का नाम क्या है? हिंदी दिवस। क्या नाम है? हिंदी दिवस। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इम्पोर्टेंट ऑफ हिंदी दिवस, वाई मीन्स we have to say that in fast before independence, so many Britishers, so many Hunas, Kushanas, all are ruled in India. They ruled differently, and they established their empire, and they bring their religious culture to this India. So what happened? Culture, religious, languages. So that's why India has a different language, different states, different culture, different. So this all. For this, so different language, different culture, different bhashaएं, different jatiya. So this man, but India is one. India is one. So but this India is one. How do we say? How do we say? Different. We have so many states. Of course, we know already there is a 29 state and 9 unitary states. So 7 unitary states. तो यहाँ पर हम देखेंगे इतने सारे स्टेट्स अलग अलग होने के बाद भी, क्या है, अलग अलग होने के बाद भी हम यूनिटरी स्टेट्स में हम देखते हैं कि हमारा भारत एक है। क्यों? कारण क्या है? तो भारत जो है डिफरेंट स्टेट्स से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया है। आई डोंट नो द मैप बट स्टिल यू दिस, ओके, एंड दिस, ओके, एंड ऑफ कोर्स, okay children, so this is India. In India there is so many states are, how many? There is many states. So here for these many states have a different languages. These many states have different language, this different culture. This for culture is different, that is culture, language, भाषा अलग है, कल्चर अलग है। कल्चर को सांस्कृतिक बोलते हैं, संस्कृति क्या बोलते हैं? संस्कृति है। भाषा अलग है, जातियाँ अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, और क्या है? धर्म अलग है। तो इतने सारे डिफरेंस है। वेशभूषा, द वे ऑफ वेयरिंग द ड्रेसेस ऑल्सो, वेशभूषा क्या है? क्या अलग है? वेशभूषा अलग है। और क्या अलग है? खान and pan, the eating things also different. See children, these many things have a different. Even though we are ek, even though we are the one, unity in a diversity. Before independence, these many states are not there. These many states are in क्या है? Tamil Nadu and Andhra Pradesh are combined. Just like and another is West Bengal and Orissa, these are joined, and Bangladesh is combined. This is happened there. तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, इतने these are different before independence. For independence, at the time of independence, what happened? It is difficult to unite the people.
too difficult. It is difficult to unite the people because these many members have different eating vegetation, different wearing dharma, religious culture and bhasha also. They don't know how to communicate. They have different languages, no? Punjabi people is talking Punjabi, Bengali people is talking in Bengali, Andhra Pradesh people is talking in Andhra. This many languages are. Telugu bhasha is talking, Tamil people Tamil. So here क्या है, इतने सारे भाषाएं, this many languages. So it is a difficult at the time of independence. At the time of independence. So for that purpose, what is this importance of independence? After the what is the importance of Hindi Divas? How it comes? That I will start in a lesson. I will tell in a class. So here, children's Hindi Divas. हमारा लेसन का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है, हिंदी दिवस. इज द थर्ड चैप्टर एंड हिंदी दिवस. ओके चिल्ड्रन, हिंदी दिवस. हिंदी दिवस मीन्स, हिंदी मीन्स लैंग्वेज हिंदी. हमारे भारत की भाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी. हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी. तो इसके बारे में दो लड़कियां हैं. ये लड़कियां कौन है, टू गर्ल्स आर हियर. वन गर्ल इज सरिता एंड अनदर गर्ल इज Rosie. Okay, this girl name is Rosie and another girl name is Sarita. Okay, these two girls, these are the two girls. Here, two girls. One girl name is what is that? Sarita. Another girl name is Rosie. Okay. These two children are talking about, these two children, Rosie and Sarita is talking about, what they are talking? Conversation. बातचीत. क्या है? They are talking. What they are talking? बातचीत. What is that? Is called conversation. What is that called? Conversation. What is that called? Conversation. Here, conversation. What is that conversation? That is called बातचीत. बातचीत means, so dialogue wise, according to the dialogues, first Rosie is telling the answer, giving Sarita. Sarita is telling the asking the questions. So this type of lesson is called conversation lesson. Okay children, so conversation lesson. So in this, this girl is, Sarita is telling about this, giving answer. So what she was telling and what we understand. So क्या, Hindi Divas, the importance of Hindi Day. Yes. Here we learn about, what we will learn here, Hindi Day. What is Hindi Day? Okay, we will learn Hindi Divas or a Hindi Day. Actually we call as a Hindi Divas only. Hindi Divas. Hindi Day means Divas. So the first here we will read here. I am reading here once. Here Sarita और रोजी, सरिता और रोजी कौन थे? दो सहेलियां थी. क्या थी? सहेलियां मीन्स फ्रेंड्स. सहेलियां मीन्स सहेलियां मीन्स फ्रेंड्स. ओके, सहेलियां थी. कौन थी? फ्रेंड्स थी. कौन? रोजी और सरिता दोनों फ्रेंड्स थी. ओके, तो कौन कौन फ्रेंड्स थी? रोजी एंड सरिता. हियर रास्ते में मिली. दोनों फ्रेंड्स, दे आर बोथ आर द फ्रेंड्स. ऑन द वे, रास्ते. रास्ता मतलब क्या है? रास्ता मतलब वे. रास्ते मीन्स ऑन द वे. तो रास्ते में मिली. कौन मिली? तो रास्ते में मिली. दोनों बीच में बातचीत करती हुई चली. वो दोनों फ्रेंड्स दोनों फ्रेंड्स मतलब सहेली रास्ते में मिली और बातचीत करती. दे आर टॉकिंग. व्हेन द टू फ्रेंड्स आर मीटिंग, नो, दे विल टॉक. सो दिस टू गर्ल्स आर टॉकिंग. बातचीत. दे स्टार्टेड द कन्वर्सेशन. सो हियर रोजी, द फर्स्ट डायलॉग इज गिवन बाय रोजी. दैट इज, क्या बात है सरिता? व्हाट? क्या बात है? हाउ आर यू? व्हाट इज द मैटर? This girl is talking. क्या बात है? What's the matter, Sarita? Rosie is telling the first dialogue. What is the first dialogue? क्या बात है सरिता? क्या बात है सरिता? Question mark. She asked the question. तुम आज बहुत खुश हो रही हो. खुश हो मतलब तुम
आज बहुत खुश हो। मतलब क्या है, यू आर लुकिंग सो हैप्पी टुडे। सो कहाँ से आ रही हो, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, फ्रॉम वेयर यू कमिंग। सरिता अपने विद्यालय से, दिस गर्ल इज आंसरिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम माई स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम माई स्कूल। विद्यालय से आ रही हूँ, कहाँ से आ रही है, दिस गर्ल इज कमिंग फ्रॉम विद्यालय। मतलब क्या है, विद्यालय। तो यहाँ पर हम विद्यालय का क्या देखेंगे, पर्याय शब्द क्या है, विद्यालय का पाठशाला और मदरसा। पाठशाला को मदरसा, मदरसा भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं। स्कूल इन इंग्लिश वर्ड इट इज अ स्कूल, तो स्कूल भी बोलते हैं। तो व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस पाठशाला और विद्यालय इज द पाठशाला, मदरसा, मदरसा, ओके, मदरसा, मदरसा, स्कूल, दिस आर द सिनोनिम्स। तो यहाँ पर हम देखें, मैं कहाँ से आ रही हूँ, मदरसा से, स्कूल से आ रही हूँ, बता रही है। तो क्या है, सरिता, नाउ सरिता इज गिविंग द डायलॉग, व्हाट द डायलॉग इज दैट, क्या कह रही है, अपने विद्यालय से, दिस गर्ल इज टेलिंग दैट मैं विद्यालय से आ रही हूँ। क्या आ रही है, कल एक विशेष कार्यक्रम है, कल एक विशेष कार्यक्रम, कल, तो कल, दिस गर्ल सरिता इज टेलिंग कल, कल मीन्स टुमारो और यस्टरडे, टुमारो और यस्टरडे, टुमारो और यस्टरडे। दिस गर्ल इज टेलिंग अबाउट व्हाट द कल आर, मैं कल हमारे स्कूल में क्या है, हमारे स्कूल में कल एक हमारे स्कूल में विशेष कार्यक्रम है। क्या बता रही है ये, कल हमारे स्कूल में क्या है, कल हमारे स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम है। कल, कल का मतलब क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे और टुमारो, tomorrow. So yesterday or a tomorrow, we will say like that, yesterday or a tomorrow. तो यहाँ पर हम देखेंगे yesterday or tomorrow, the कल meaning, कल हमारे विशेष, विशेष मतलब इसे important, विशेष कार्यक्रम है, important program is there, विशेष कार्यक्रम है, क्या है, कार्यक्रम है। तो क्या है, is an important program is there in our school, उसी की तैयारी चल रही है, for that only preparation is going on, for that the preparation is going on. So देख चल रही है। तो रोजी, अच्छा, this girl is saying good, अच्छा means good, this girl Rosie is giving the dialogue, अच्छा, अच्छा मतलब क्या है, good, अच्छा, good। तो यहाँ पर अच्छा, तो यहाँ good। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, तो तुम्हारे स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, दिस गर्ल इज टेलिंग, रोजी इज टेलिंग, इन योर स्कूल हिंदी डे इज सेलिब्रेटिंग, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटिंग। अच्छा, तो गुड, मना रहे हैं मीन्स, बना रहे हैं मीन्स सेलिब्रेट करना, मनाना, टू सेलिब्रेट। सो मैं इसको मीनिंग बाद में दे दूंगी, मनाना मीन्स सेलिब्रेट। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जा रहा, नेक्स्ट सरिता, हाँ कल 14 सितंबर है। क्या, दिस गर्ल इज सेइंग दैट टुमारो, टुमारो इन 14th September, in Hindi it is called सितंबर, in Hindi it is called सितंबर, कल हिंदी दिवस है, that is 14th September, September 14th we are celebrating हिंदी दिवस। ओके, तो क्या है, तो यहाँ पे बोले हिंदी दिवस है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे भी गीत सिखाओ ना, सिखा दो ना। दिस गर्ल इज टेलिंग टुमारो इज द हिंदी दिवस, टुमारो वी आर गोइंग टू सिंग अ group song. What is that group song? So this girl is telling we are learning the group song. So here I also make you to learn a group song. This song. So what that song is it? Rosie, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ and ध्यान से सुनो और मुझसे सीखो। This girl is saying that you learn from me and learn very carefully. If I am asking, sing a song, how many members are telling that I will sing a song? Well, if I am asking in a class, let me sing us one song. So you are not ready to sing. This girl is telling that I am ready to sing. Immediately this girl is telling, what is it? I am ready to sing. I will make you learn to sing also.
रेडी टू सिंग एंड आई विल मेक यू लर्न ऑल्सो। क्या है, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी और तुम्हें क्या करूंगी, सुनाऊंगी और सिखाऊंगी करके बता रही है। तो यहाँ पर देखेंगे रोजी क्या है, सुनाऊंगी और सिखाऊंगी। रोजी क्या बोलती है, देखो दिस गर्ल रोजी, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। आई विल सिंग, लिसन प्रॉपरली, ध्यान से सुनो। ध्यान से मीन्स लिसन प्रॉपरली। क्या करना है, रोजी को बोल रही है, ये रोजी बोलती है मैं तुम्हें सिखाती हूँ, तुम ध्यान से सुनो और सीखो, लर्न प्रॉपरली। तो नेक्स्ट ये गाना गा रही है, क्या गा रही है, देखो हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ। आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। अगेन you also follow along with me. See, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ। आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। सरिता, हिंदी दिवस सितंबर 14 को ही क्यों मनाते हैं? दिस गर्ल इज आस्किंग व्हाई September 14 is celebrating this. This girl is asking. See here, why this? Any particular reason is there? No. So she was, सरिता क्यों मनाते हैं? रोजी, हमारे अध्यापक जी ने बताया कि सितंबर 14, 1949 को संविधान ने हिंदी भाषा के रूप में अपनाया है। व्हाट इज द सितंबर 1949? 1949 क्या है, हिंद क्या बनाया है? सितंबर 14 को क्या है, 1949 को संविधान ने, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संविधान, संविधान में क्या है, संविधान में क्या कहा है, हिंदी को अपनाया है। संविधान में क्या हिंदी को राजभाषा, राजभाषा के रूप में अपनाया है। राजभाषा के रूप में अपनाया है। तो क्या है, सितंबर 14, 1949 को क्या है, संविधान में राजभाषा के रूप में अपनाया है करके बताया। देखो यहाँ पर इस संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाया, इसे राजभाषा के रूप में अपनाया है। व्हाट इज इट? राजभाषा के रूप में अपनाया है। तो सरिता मुझे समझ गई, इसीलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। That's why I understand that every year, मतलब संविधान में अपनाया मीन्स in a constitution they accepted. That's why every year September 14 is celebrated as Hindi Divas. September 14 is celebrated as Hindi Divas. तो here Hindi Divas is celebrating and here देखो संविधान में राजभाषा के रूप में अपनाया है, समझ गई। हर साल इस दिन हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन हिंदी को देश की राजभाषा क्यों चुना गया? And very important question. This girl is asked most important question. What is that? Why they are so many? India have so many languages. Is Kashmiri, that is Dogri is there, Punjabi there, Haryanavi is there, Gujarati is there, Rajasthani is there. Here West Bengal is there. Here Bihar language, Bihari is there. Here Orissa language, here Andhra languages, here Kerala, here Tamil Nadu, here whatever the Karnataka and Maharashtra. In this many languages are there. Why Hindi had chosen? Understand? Many languages, Hindi, English, Hindi, Hindi, Gujarati, Marathi, Bihari, Rajasthani, Gujarati, Andhra Pradesh, Andhra, Telugu भाषा, तमिल भाषा, इतने सारी भाषा हैं, फिर भी क्यों हिंदी को ही चुना है? Why they are selected Hindi as a national language? This girl is asked the question. Which girl is asked this question? किस लड़की ने पूछा इस क्वेश्चन के बारे में? तो सरिता ने पूछा। सरिता ने इस तरह क्यों चुना है? Why selected Hindi as a national language? तो यहाँ बता रही है, तो देखो बता रही है, रोजी का आंसर देखो हम देखें, लेकिन हिंदी को ही देश को
रोजी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। क्या है? हिंदी बोलने वाले। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखेंगे ये पूरे को क्या बोलते हैं? ये द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? द्रविडियन लैंग्वेज, द्रविड़ भाषा बोलते हैं। द्रविड़ भाषा, दक्षिण में जो भाषा बोली जाती है द्रविड़ भाषा। यहाँ ऊपर, ये ऊपर की भाषा जो है, वॉट एवर द लैंग्वेजेस आर स्पीकिंग ऑन नॉर्थ साइड, देर ऑल कॉल्ड हिंदी। देर रिलेटेडली वन अनदर। दिस बोलते हैं, समझते हैं, हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं। ये हमारी भाषा हिंदी हो सीधी। अवधी भाषाओं को भी अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। आर्य भाषा, अवध भाषा, मगध भाषा, पंजाबी, अवध, इस तरह की भाषाओं को डिवाइड किया। बट इनकी भाषा एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। ये द्रविड़ भाषा नॉट कनेक्टेड। तो यहाँ पर देखेंगे, बट इन सबको, इनसे यहाँ पर भारत में सबसे अधिक भाषा को, हिंदी को अधिक बोलते हैं और समझते हैं। व्हाट इज दैट? जो अधिक बोलते हैं, बोलना मीन्स दे आर स्पीकिंग मोर एंड दे अंडरस्टैंड बाय द लैंग्वेज। सो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल्स इज नोइंग द लैंग्वेज हिंदी। Most of the people learn Hindi. Here Maharashtra also they learn somewhat they know. Here also somewhat know. Orissa, this all them. So here we will find the only Tamil, Karnataka and Kerala and Tamil Nadu have a Dravidian language. They did not understand. First of all, this Tamil Nadu was not accepted. Only Tamil Nadu only. I don't want which language? Hindi. After that, many years after, all are accepted 1949 Hindi as a national language, but Tamil Nadu not accepted. After that, it was accepted. That they are using the English languages. So that's why they are mainly, it's a language is English. Most of the people are known the English only. Here, so whatever the thing is, here क्या है? The main reason is most of the people know the Hindi language. भारत में अधिक से अधिक हिंदी को जानते हैं और बोलते हैं। जानते हैं और बोलते हैं। यस, दे आर नो एंड दे विल स्पीक ऑल्सो। अधिकतर जानते हैं और बोलते हैं। तो चिल्ड्रेन, हम देखते हैं कि अधिक से अधिक लोग जानते हैं और बोलते हैं। कौन सी भाषा? उत्तर में सब बोलते हैं। सो दैट्स वाई दे आर केप्ट। हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज। Only few, 5 or 6 states are not known, but this many states are known. So that's why यहाँ पर क्या है? तो जब देश की एकता करने के लिए क्या है? देश को कंबाइन करने, बिकॉज many of states are divided in the part, different. Most of the states are divided into different states. Most. And they are ruling the differently. They are doing their own. The king is different now. So for that to combine, to unite, for that purpose they combine all together and say that it is called India. So we need one language. This all belongs to India. So for that purpose we need one language. अंडरस्टैंड? इन हिंदी आई एम टेलिंग, भारत में अधिक से अधिक लोग हिंदी जानते हैं। भारत में अलग अलग प्रांतों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोलने वालों को एक करने के लिए क्या करते हैं? हिंदी को अपनाया है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा बच्चों, समझ में आया? तो ये डिफरेंट स्टेट्स को एक करने के लिए हिंदी को ही अपनाया है। समझ में आया? तो हिंदी भाषा कैसी है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसीलिए हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाए। दिस गर्ल इज सिंगिंग। आफ्टर दैट, तो यहाँ पर इस लेसन में मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की सरिता जो है बता रही है, क्या बता रही है? कि हिंदी बोलना है, हिंदी सीखो, हिंदी को अपनाओ करके बता रही है। तो फिर इसके बाद देखो, हाँ, ऊपर से हम देखते हैं इस लड़के में, एक बार फिर हम इसको लेसन में फिर से रिवाइज करते हो, सुनो।
हमारा पाठ का नाम क्या है? हिंदी दिवस। हमारे पाठ का नाम क्या है? हिंदी दिवस, 3rd लेसन हिंदी दिवस। तो यहाँ पर 2 लड़कियां हैं। दिस 2 आर द गर्ल्स। व्हाट इज 2 गर्ल्स? वन गर्ल नेम इज रोजी। व्हाट द गर्ल नेम इज? फर्स्ट गर्ल नेम रोजी, सेकंड गर्ल इज सरिता। व्हाट इज इट? फर्स्ट गर्ल नेम इज Rosie and second girl is Sarita. Both are friends. Both are friends, and they are coming from the school. They are started conversation. That is baatcheet. Conversation. Conversation. Yes, conversation means talking. They are started. When we are meet with our friends, we are started the talking. So these 2 girls also started. This girl Rosie asked. रोजी इसको, क्या बात है सरिता, तुम बहुत कुछ खुश नजर आ रही हो। What's the matter सरिता? You are looking so happy. This girl is asked by this girl. तो सरिता is said, हाँ, yes, tomorrow in our school, विशेष कल मतलब tomorrow भी हो सकता है और आज पहले वाले दिन yesterday भी बोल सकते हैं, कल भी बोल सकते हैं, tomorrow also बोलते हैं। तो दोनों इज फॉर यूजिंग दिस कल। तो यहाँ है कल हमारे स्कूल में, इन टुमारो इन आवर स्कूल वी आर सेलिब्रेट, विशेष कार्यक्रम है। क्या है? व्हाट इज दैट कार्यक्रम? व्हाट इज दैट कार्यक्रम? क्या है कार्यक्रम? विशेष कार्यक्रम क्या है? कि हिंदी दिवस। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दिस? हिंदी दिवस है करके। तो ये दिस गर्ल इज अच्छा। व्हाट इज दैट? अच्छा मीन्स गुड। ओह गुड। तो यहाँ पर ये लड़की बोल रही है सितंबर 14 को ही। क्यों है अच्छा बोले? तो ये बोली कि सितंबर 14 को क्यों मनाते हैं? वाई वी सेलिब्रेट द हिंदी दिवस इन सितंबर 14? तो सितंबर 14 को बनाने का मुख्य उद्देश्य है, द रीजन दिस गर्ल इज टेलिंग। व्हाट इज दिस गर्ल इज सेइंग? सितंबर 14 1949 को संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हिंदी इज अ नेशनल, अडॉप्ट, you can say accept or adopt, Hindi is a national language. Hindi is national language. अपनाया है, ये accept क्या है? उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया है। हिंदी हमारी राजभाषा। क्यों हमारी राजभाषा है? तो इसके हम देखेंगे। क्योंकि भारत में अनेक स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स। Yes, in India many states are there. So in that states, so क्या हुआ यहाँ पर इस स्टेट्स को क्या है? एकजुट करने के लिए, क्या करने के लिए? एकजुट करने के लिए हिंदी को अपनाना है। क्योंकि इसको अधिक से अधिक लोग, भारत में अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। इसीलिए क्या किया? ये डिफरेंट भाषाओं का देश को एक भाषा को कंबाइन करने, जोड़ने के लिए हिंदी को अपनाया। कब अपनाया? 1949 को अपनाया गया है। किसके रूप में अपनाया है? राजभाषा के रूप में अपनाया है। क्या बोलना? राजभाषा। क्या है? राजभाषा। बोलने वाली भाषा क्या है? राजभाषा। जैसे राज्य की भाषा, पूरे देश की भाषा राज्य भाषा के रूप में बना। तो राजभाषा इज देयर एंड राष्ट्रभाषा इज देयर। यस, अंडरस्टैंड? इन राजभाषा, व्हाट इज द राजभाषा? जिसमें हम हिंदी में बोलते हैं, लिखते हैं और सुनते हैं। ये राजभाषा मीन्स ऑल ऑफिशियल वर्क विल बी डन विद थ्रू द राजभाषा। एंड राष्ट्रभाषा हो गया। राष्ट्रभाषा, राजभाषा नेक्स्ट क्लास सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह हमें ये उपयोगी है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन राजभाषा एंड राष्ट्रभाषा के बारे में देख। तो इससे पहले क्यों हमारे देश एक करने के लिए क्यों अलग अलग था? क्योंकि यहाँ पर खान पान अलग था, वेशभूषा अलग थी, धर्म अलग थे, जाति अलग थे, कल्चर अलग थे, भाषाएं अलग अलग होने के बाद भी हम सब एक हैं। इसीलिए हम सब एक होने के लिए हिंदी में एक गाना गाया, हिंदी को दिवस बनाने के लिए एक गाना। हिंदी बोलो, हिंदी सीखो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाएं, हिंदी दिवस मनाएं। तो दिस गर्ल इज टेलिंग, दिस गर्ल इज हाउ this girl is telling this, हिंदी सीखो, learn हिंदी। This girl is telling learn हिंदी। What is it? Learn हिंदी। Everyone learn हिंदी। हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। You have to speak हिंदी and हिंदी को अपनाओ। Accept you have to accept the Hindi language
Understand? Accept the language. This is our national language. We have to accept the language. And then after that, आओ सब मिलकर गाएं, आओ सब मिलकर गाएं, हिंदी दिवस मनाएं, आओ सब मिलकर गाएं, हिंदी दिवस मनाएं. तो यह सब मिलकर, we come, let's we all come together and sing a हिंदी दिवस song. What is that song? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सीखो हिंदी दिवस अपनाओ. Once again, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाएं. तो इस पाठ में यही है. और हम देखते हैं क्या क्या. लड़कियां, मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप जवाब देना. क्या हिंदी दिवस में, हिंदी को इसको क्या बोलते हैं? हिंदी दिवस. ओके. हिंदी दिवस में कौन सी 2 कैरेक्टर्स हैं? एक रोजी है, एक सरिता. दोनों कौन है? दोनों एक सहेलियां हैं. दोनों क्या कर रही हैं? बातचीत कर रही हैं. दोनों क्या कर रही हैं? बातचीत में क्या है? रास्ते में विद्यालय से जाते समय कौन मिली? वह पाठशाला से. पाठशाला का पर्याय पदम क्या है? पाठशाला, मदरसा, स्कूल. कल क्या हुआ? कल हमारे पाठशाला में क्या है? एक अच्छा कार्यक्रम, विशेष प्रोग्राम चल रहा है. व्हाट इज द विशेष प्रोग्राम? दैट इज द September 14. दैट इज वी आर सेलिब्रेटिंग September 14 एज द हिंदी दिवस. Why we are celebrating September 14 as the Hindi Divas? Because Constitution adopt this concept. Because adopt this. Hindi is a राजभाषा. क्या है? राजभाषा है. क्यों राजभाषा अपनाया है? Why we have to? The main question is why we accept this. This reason is कि अधिक से अधिक हिंदी जानते हैं और बोलते हैं. अधिक से अधिक भाषा हिंदी बोलते हैं और जानते हैं. सो क्या है? हिंदी है. तो भारत में कितने स्टेट्स हैं? ये आपका प्रश्न. कितने स्टेट्स हैं? कितने यूनियन स्टेट? आपको क्वेश्चन बनाना, आप इन घर में लिखो. हाउ मेनी स्टेट्स? Okay children, what are the, you have to write in your notes what are our states. What your homework is? Write different states. At least you learn, no? You have to write different, what are the states. हमारे राज्य के नाम और राज्य की भाषा क्या है? राज्य के नाम और राज्य की भाषाएं क्या हैं? क्या हम होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है हमारे स्टेट्स क्या हैं? क्या है? स्टेट्स. क्या? हमारे भारत के राज्यों के नाम, स्टेट्स के नाम और क्या लिखेंगे? उसकी भाषा, उसका कैपिटल. एक मेरा राज्य लिखना, एक राज्य, और दूसरा यहाँ पर उसकी राजधानी लिखना. राजधानी मीन्स कैपिटल लिखना. और दूसरी बात है कि दूसरी उसकी भाषा, उस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है. तो ये भी लिखे. ये आपका होमवर्क है. तो यहाँ पर आप ये पूरे हमारे कितने स्टेट्स हैं वो लिखो, उसकी कैपिटल्स क्या है, उसकी वहाँ उस स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है लिखिए. सो धन्यवाद.